GHGDD problem. This is asteroid collection, and basically you have been given an integer array of asteroids. So this is a single 1D integer array, and this represents an asteroid. And a number, basically element, represent the size of asteroid, and the sign of that element represent the direction of movement of the asteroid. The positive number like 3 means the asteroid is moving in the right direction, and negative means asteroid moving in the left direction. Each asteroid is moving with the same speed, so two asteroids moving in the same direction will never collide because the same speed, and a different direction wale will collide. And find out the state of the asteroids after the collision. So what will be the state? Basically they are saying ki if 5 and 3 collides, one of them will remain, right? Either both of them will demolish. If 5 and -5 will collide, then both of them will demolish. Like if equal element has equal size, like both the asteroid has equal size and reverse direction, so both will explode, right? And but in this case, like the size is not equal. 5 is obviously greater than -3, so 5 will sustain, -3 will get exploded. So yeah, that's about it. It's a pretty straightforward problem. What you have to do, you have to just iterate over this array. For example, this 5353, just one for loop for iterating over this array. You will start at index 3. So you will just keep on, like, first element will be added as it is. Now let's start with the second time. Now second index is positive, so again as it is, like this. And basically if what I'm going to tell you, if -3 was there and 5 was there, so this -3 is basically moving in this direction, and 5 is moving in the reverse direction. It's moving towards right, it's moving towards left, so there will be no collision in this case. Okay, so what I'm saying, if negative comes, okay, if negative and positive comes, okay, तो नो कोलिजन. बट अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव का पेयर आता है, फिर पॉजिटिव है फिर माइनस नेगेटिव है, सो कोलिजन होगा. ठीक है, तो दिस इज द थिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब विल कम टुगेदर, तो कोलिजन विल अकर. ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग positive negative. So that's about it. This is also like वरना क्या what is the basically the thing which you can do, you can just check the signs. So basically if two elements have reverse signs, so you will do the task, you will check which will explode and which will remain. But when this will occur only, then you will task, so you will check कि positive आ रहा है फिर negative आ रहा है. अगर negative और positive आ रहा है, you will not check then. ठीक है, तुम directly add कर दोगे. This is also the thing. वरना बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर ऑपरेटर्स बेसिकली आपके साइन अगर डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों में चला देंगे. पर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले कभी एक्सप्लोड होंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो ओनली केस फॉर एक्सप्लोजन इज व्हेन पॉजिटिव कम्स एंड उसके बाद नेगेटिव आ रहा है. तो अभी ये दोनों तो चलो पॉजिटिव है तो डाल देंगे. अब पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव आ रहा है, यू कैन चेक. तो वैसे इसमें स्टैक की आज सच कोई नीड नहीं है. ठीक है, नीड नहीं है आई थिंक स्टैक की. हम डायरेक्टली से एरे से भी कर सकते हैं, बट स्टैक बेसिकली लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये आया तो हम स्टैक फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे. जैसे कि स्टैक फिल करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डाल दिया, 3,5 डाल दिया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब 5,3, अब 3 वाले जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसको टॉप वाले एलिमेंट से प्रॉब्लम है. नो, हम स्टैक के बिना नहीं कर सकते, बिकॉज ये लेंथ एक्चुअली लंबी चल सकती है. ठीक है, तो जैसे 5 है, 3 4 5 है, यहाँ पे -6 आया, तो -6 इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, सबको तोड़ देगा -6. ठीक है, नॉट सबको, बट या एक्चुअली जब ये दोनों टकराएंगे तो ये उड़ जाएगा और -6 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, जब ये टकराएंगे ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, और फिर एट लास्ट आपका क्या है, जैसे कि हम्म बेसिकली एट लास्ट -6 ही बचेगा एरे में, क्योंकि 3 को भी डिमोलिश कर देगा ये. तो इसलिए हमें स्टैक चाहिए, क्योंकि हमें बेसिकली टॉप एलिमेंट को कंपेयर करना है अपने करंट एलिमेंट से. और ये बेसिकली काफ़ी वाइल लूप चला देंगे जब तक हमारा एक्सप्लोजन होता जा रहा है, तो हम एक्सप्लोजन कराते जाएंगे. ठीक है, तो चलते हैं बेसिकली अब इसका स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट. आई होप थोड़ा सा लॉजिक इसका ज़्यादा है नहीं, बट आइट्रेशन ही है. और जैसे मैंने बोला, एक लाइन का लॉजिक है, आपको करंट एलिमेंट को चेक करना है. जो करंट एलिमेंट, जैसे कि अभी स्टैक तुम बनाना स्टार्ट करोगे. ठीक है, अब जब तुम्हारा करंट स्टैक के टॉप पे 3 पड़ा हुआ है, करंट एलिमेंट 5 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो डाल दो. ठीक है, और फिर -3 आया और स्टैक के टॉप पे 5 पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम है. जब प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, पॉप आउट करेंगे, इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर जो भी आंसर होगा उसको यहाँ पे डालेंगे. अभी आंसर जैसे पॉजिटिव है, क्योंकि 5 वाला जीत गया, 5 वाला बड़ा था, तो अब इसमें और कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, पर मान लो कि अगर ये हमारा क्या होता,
यहाँ पे -6 होता, तो जब ऑपरेशन परफॉर्म होता तो दोनों जब भिड़ते तो फिर -6 वाला बच जाता। तो स्टैक के टॉप पे अब 3 आ गया था क्योंकि 5 तो मैं रिमूव कर चुका था। तो दोबारा मैं पॉप करूँगा, 3 को बाहर ले जाऊँगा। अब 3 जब भिड़ेगा तो दोबारा से ये 3 विल गेट डिमोलिश्ड और -6 रिमेन करेगा, तो -6 को मैं स्टैक में डाल दूँगा और इसके बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं अगर ऐसा सिनेरियो होता। इस सिनेरियो में काफ़ी सिंपल था, 3 आएगा, 5 उसके ऊपर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 5 जब 3 और -3 और 5 जब व्हेन दे विल कोलाइड तो एक्सप्लोड कौन सा हो जाएगा, -3 एक्सप्लोड हो जाएगा, 5 वापस आ जाएगा, तो 3 और 5 एरे हो जाएगा हमारा आंसर। 10 और -10 जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोजन बेसिकली दोनों उड़ जाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द थिंग। देखते हैं हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो पहली चीज जैसा कि मैंने बताया, एक सिंगल आइटरेशन है, ओ इनका कोड है और आई प्लस प्लस while लूप चलेगा तुम्हारे जब तक स्टैक का साइज है या फिर स्टैक इज नॉट एम्प्टी। एंड तुम्हारे एलिमेंट कैसे हैं कि स्टैक डॉट टॉप तुम्हारा है एक पॉजिटिव एलिमेंट है। एंड जो करंट एक एलिमेंट आ रहा है ए ऑफ आई, अगर तुम्हारा नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या हो रहा होगा, सबसे पहले इंट एक्स में स्टोर कर लो टॉप पे क्या पड़ा था, आपको पॉप करा दो। तो हमने क्या करा, हमने जैसे 5 को यहाँ पे 3 छोड़ दिया, 5 को बाहर निकाला और -3 के साथ हम कोलाइड कराएंगे। अब बेसिकली आंसर क्या आएगा, ठीक है। दो केस बनते हैं, ठीक है, दो ही केस बन सकते हैं कि एक्स की वैल्यू बड़ी है तुम्हारे एस डॉट टॉप से, सॉरी एक्स और टॉप तो एक ही है। एक्स की वैल्यू बड़ी है तुम्हारे ए ऑफ आई से। अब ए ऑफ आई तुम्हारा नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट ले लो, या फिर एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ए ऑफ आई। एक और केस बनता है पर उसकी कोई नीड नहीं है, मैं बता देता हूँ वो कौन सा केस है। कि अगर एल्स बेसिकली, या फिर एल्स का आने का क्या मतलब है कि तुम्हारा एक्स जो है वो तुम्हारा छोटा है एब्सोल्यूट ऑफ ए ऑफ आई से, ठीक है। ए ऑफ आई जो आया, जो आपका एक्चुअली में एलिमेंट आया वो काफी बड़ा था, -6 था। तो क्या होगा बेसिकली, हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और जब -6 कोलाइड करेंगे तो 5 विल गेट एक्सप्लोड। तो 5 तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी रिमूव हो चुका है बिकॉज हम 5 को तो पॉप करा चुके हैं। पर अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम लाइक 5 को दोबारा पुश करने के लिए क्या करेंगे, ए आई की वैल्यू और एट लास्ट हम जैसे पुश तो कर ही रहे हैं, ठीक है। इफ ए ऑफ आई, वो भी कब पुश कर रहे हैं, जब नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हम क्या पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर, डॉट पुश कर देंगे अपना, जो मेरे को भिड़ाने के बाद आंसर मिला, ठीक है। तो हो सकता है भिड़ाने के बाद आंसर मेरे को -6 मिले। जब -6 मिल रहा है तो पहले भी वैल्यू -6 थी, ओके, -6 तो यहाँ पे, क्योंकि अगर ये -6 होता, ठीक है, मैंने 5 निकाला होता, मैंने 5 और -6 को भिड़ाया होता, तो फिर आंसर मेरे को क्या मिलता, -6 मिलता, ठीक है। तो -6 मिलता तो मैं अब इसको डालने का क्या तरीका, लाइक मान लो कि यहाँ पे वैल्यू 7 पड़, अभी 3 हटा देते हैं क्योंकि 3 तो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे हम ए एफ आई जैसे -6 रहेगा, फिर -6 अब 3 के साथ कोलाइड करेगा तो सब कुछ एम्प्टी हो जाएगा, लास्ट में -3 बचेगा, -6 बचेगा। बट अभी वाले सिनेरियो में क्या होगा, सबसे पहले 5 और 6 में से कौन जीता, -6 जीता। तो ये एल्स वाले केस के अंदर आ रहा है अभी। पर एल्स वाले केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 तो हमारा ऑलरेडी उड़ा हुआ है ना यार, और हमें ए ऑफ आई की वैल्यू चेंज करनी थी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए ऑफ आई की वैल्यू चेंज कर दूँगा। ए ऑफ आई को मैं कर दूँगा x, क्योंकि अगर तुम्हारा x बड़ा है, जैसे कि 5 बड़ा है और -3 होता, तो मैं बोल दूँगा कि ठीक है भाई, दोनों कोलाइड करेंगे, ये डिमोलिश हो जाएगा, 5 वैल्यू रह जाएगी। अब 5 को मैं वापस स्टैक में कैसे डालूँगा? कोई डालने का तरीका है? एक तरीका है कि एआई को तुम कर दो x और फिर एआई नॉट इक्वल टू 0 है तो s डॉट पुश i कर देंगे, सॉरी ए ऑफ आई कर देंगे तुम। तो वो अब वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो 5 वापस से अब स्टैक में चला गया, 7, 5 हो गया और ये शांति से ये रिटर्न हो जाएगा अरे, बिकॉज़ या दैट्स अबाउट इट, क्योंकि और कुछ कोलिजन नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, अगर कोई जैसे बड़ा एलिमेंट आता और दोनों इक्वल आते, तो मान लो जैसे 5 होता, टॉप पे 5 निकला और -5 ने कॉल करी थी, तो दोनों भिड़ेंगे और दोनों इक्वल एलिमेंट है, एआई की वैल्यू कर दो 0। तो दोनों को भिड़ने के बाद जो नए वाले एलिमेंट आ रहे हैं ना, हम उसमें चेंज कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये तो एलिमेंट हमने उड़ा ही दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब पॉइंट ऐसा हो सकता है कि अगर ये वैल्यू बड़ी थी नए वाले एलिमेंट से तो ये वाला दोबारा डालना पड़ेगा। तो नए वाले एलिमेंट को मैं 5 कर दूंगा फिर से, लाइक जैसे कि 3 -3 वाले केस में, जब 5 के ऊपर मैंने -3 चलाया तो मेरे को मिला 5, तो मैंने -3 को बेसिकली 5 कर दिया, -3 की वैल्यू को मैंने 5 कर दिया, 5 तो मेरा टॉप पॉप हो ही चुका था। तो अब जब ये पुश करूंगा तो ये हो जाएगा। पर मान लो 3 और -3 भिड़ रहे होते तो मैं कह देता कि ठीक है चलो भिड़ गए, अब -3 की वैल्यू को 0 कर दो, जब पुश होने की बात आएगी तो 0 पुश हो जाएगा, कुछ कुछ पुश ही नहीं, मतलब 0 पुश हो जाएगा, वो हम पुश करेंगे नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ है कि जैसे इस वाले केस में 10 -10 निकालते, 0 लेते पर 0 पुश नहीं करते, ठीक है। 10 तो पर पॉप हो चुका था, ठीक है, तो कुछ नहीं बचा एट लास्ट।
और दूसरा एक लास्ट ये वाला केस बचता है कि जैसे ये वाली वैल्यू आपकी थोड़ी-सी बड़ी हो गई, -5 आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा कि यार देखो अब मेरे को -5 को इससे भिड़ाना है, ठीक है? 7 के साथ भिड़ाना है। तो सबसे पहले तो -3 पॉप हो गया। ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई? ए ऑफ आई की वैल्यू वो ही हो गई जो उसकी पहले वैल्यू वैल्यू थी। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं बेसिकली। ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू ए ऑफ आई, कुछ काम ही नहीं करा हमने और इसको 5 -5 ही रहने दिया। फिर अब हमने चेक करा कि दोबारा से भाई यही केस बैठ गया कि टॉप पे पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है और नेगेटिव वैल्यू है। सो अब ये दोनों जब भिड़ेंगे तो ये फर्स्ट वाले केस के थ्रू इसकी वैल्यू क्या कर देगा 7 कर देगा। -5 विल बिकम इक्वल टू 7। ये दोनों हट जाएँगे, 7 पुश हो जाएगा, लास्ट में आंसर 7 ही आ जाएगा अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता तो। तो बस यही करना है इस कोड में। बेसिकली लॉजिक ये था कि इसके लिए हमें कुछ काम क्यों नहीं करना है क्योंकि जैसे जो ऑलरेडी जो एआई की वैल्यू जो होगी वही अंदर चली जाएगी, ठीक है? या तो वो अंदर जाएगी या तो वो दोबारा से इसके साथ ऑपरेशन होगा, कि अगर नेगेटिव होगी तो ऑपरेशन होगा, अगर एआई की वैल्यू पॉजिटिव थी तो फिर वो अंदर चली जाएगी चुपचाप से। जैसे कि लास्ट केस में यहाँ पे क्या बच रहा था, यहाँ पे हमारा 7 के साथ -6 का ऑपरेशन हुआ, ठीक है? अब तुम्हारा ये वाला x वाला एलिमेंट जो था वो बड़ा एलिमेंट है, तो कुछ करना ही नहीं है, पर ये तुम पॉप करा चुके हो, ठीक है? ये भी चीज़ है। अ, हाँ, तो अच्छा ये वो वाला केस नहीं है, 7 और -6 वाला केस ये वाला है। तो वो वाला केस कब होता? वो वाला केस कब होगा वो मैंने बता दिया तुम्हें वैसे तो, कि अगर जैसे यहाँ से एलिमेंट आ रहा है, वो एलिमेंट छोटा है, 5 छोटा है और -6 यहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो मैं क्या करूँ इसको -6 ही रहने दो और मान लो कि 5 और -6 ही होता, कुछ और होता ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे 5 प्रेज़ेंट होता, एम्प्टी अरे था, पहले 5 प्रेज़ेंट था, 5 मैंने निकाला, पॉप आउट करा, -6 के साथ इसको मैच कराया। अब एआई को क्या करूँ मैं? या तो अब एआई को कुछ मत करो, एआई को -6 का -6 ही रहने दो। तो एआई रह गया मेरा -6 ही। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू -6। अब इसके बाद क्या ये लूप चलेगा? नहीं, क्योंकि स्टैक का साइज़ एम्प्टी हो चुका है। अब ये इधर जाएगा कि क्या मैं क्या करूँ? यार यहाँ पे तुम देखो ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे -6 आंसर आ जाएगा। चेक कर सकते हो -6 को ये पुश कर देगा क्योंकि वो 0 नहीं है, ठीक है? इसको टेस्ट करते हैं। पहली चीज़ तो हमने काफ़ी चीज़ें बनाई नहीं है। इंट n अच्छा बने हुए हैं सब। n इज़ इक्वल टू ये एंड स्टार्ट इज़ इक्वल टू a एंड स्टाफ नहीं बनाया हमने और हमने वेक्टर भी नहीं बनाया जिसके हम पुश कर रहे हैं। अच्छा वेक्टर वाला काम तो बाद में, अरे वो तो करा ही नहीं। पर एक्चुअली ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये स्टैंडर्ड काम है कि एक वेक्टर में से एक सेट स्टैक में से उठा के चीजें मेरे को वेक्टर में डालनी है। तो दिस शुड नॉट बी एनी बिग थिंग व्हाइल योर स्टैक डॉट साइज। तो क्या करो, स्टैक नॉट स्टैक वेक्टर डॉट पुश को बैक कर दो, तुम्हारा स्टैक डॉट टॉप कर दो, स्टैक में से पॉप करा दो एलिमेंट्स को एंड रिटर्न कर दो अपने वेक्टर को। As I said, this is not a big thing, but the thing was that कि क्या दिक्कत है, AI is equal to 0 यहाँ पे नो, तो 5 और -6 के लिए चला के तुम्हें दिखाना है कि आंसर -6 आ रहा है। इसके लिए तो ये चल गया, -5 कैसे दे रहा है यार ये, योर आउटपुट 5 का -5। जैसे -5 था तो वो सबसे पहले आ जाएगा एक्सपेक्टेड में, ठीक है। अच्छा मैंने रिवर्स नहीं करा यार, रिवर्स भी करना होता है ये भी। बस क्यों करना होता है, सिंपल रीजन है, स्टैक में लीफ ऑर्डर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और वेक्टर में हमें स्ट्रेट ऑर्डर चाहिए जैसे पहले आए थे। हाँ, -6 आंसर आ रहा है और इसको सबमिट भी कर देते हैं यार, ज़्यादा लॉजिक था नहीं इसमें, एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। या सबमिट तो हो रहा है आई थिंक। तो इसमें आपको करना क्या था, स्टैक का क्यू अप्रोच थी क्योंकि आपके टॉप एलिमेंट के और आपके करंट एलिमेंट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि अब तुम्हारा टॉप एलिमेंट चेंज हो जाएगा उस उन दोनों के बेसिस पे। टॉप एलिमेंट कैसे चेंज होगा कि वो तो पॉप हो ही चुका है, अब नया जो एलिमेंट है वो पुश होने वाला है। तो वो पुश होने से पहले हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो आंसर में उसको जो मतलब एआई को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि अब वो जब पुश होएगा तो वो ऑपरेशन का जो आंसर है उसके थ्रू मैनिपुलेट कर दिया। इस केस में उसका आंसर x होता, इस केस में उसका आंसर 0 होता, इस केस में उसका आंसर क्या हो जाता, एआई का एआई ही रहता।
जैसे ये 5 और -6 का जब ऑपरेशन होगा, तो एआई की वैल्यू -6 थी, तो जब ये बड़ा है तो ये -6 ही रहेगा। अब -6 अगर कुछ एलिमेंट इसके ऊपर और भी एलिमेंट पड़े होते, मान लो कि 5 और पड़ा होता, मतलब 5 से पहले आपके 3, 4, 6 ऐसे कुछ एलिमेंट पड़े होते, या फिर 3 कुछ पड़ा होता। ठीक है, 6 के केस में तो अच्छा हो जाएगा, 4 बच जाएगा लास्ट में। पर 4 और 3 जैसे -6 से छोटे हैं, तो पहले 5 और -6 का ऑपरेशन होगा, -6 बचेगा या 5, स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर दोनों का ऑपरेशन होगा, t को मैंने स्टैक के टॉप से उड़ा दिया, फिर ऑपरेशन होके -6 आया, फिर -6, अब टॉप पे तो 4 था, तो -6 का -6 रहा, और ये सबको हटा देगा, बस लास्ट में -6 बचेगा तुम्हारा। तो दैट वाज़ द थिंग, ईज़ी था बेसिकली, स्टैक का बेसिकली रियलाइज़ेशन था, मोनोटोनिक स्टैक लाइक हाउ वी डू इट, एंड दैट्स अबाउट इट। ओके गाइस, बाय।